Ladies and gentlemen, today is the 19th episode of our professional talks. CS Daksh Acharya is currently working as a CS in corporate secretarial team Infosys. Ladies and gentlemen, today we had invited CS Daksh Acharya ji. He was part of EY and L&T Infotech also. We will discuss much more agendas with respect to CS jobs and scope in the big fours also with CS Daksh. So let's welcome CS Daksh Acharya to our 19th episode of Professional Talks. Hi, sir. First of all, thank you very much for having me here. It's a pleasure for me to be a part of this podcast and looking forward to a great conversation with you. Yeah, Daksh, this is the 19th episode, and we had recorded 18 episodes with multiple professionals. Like we had invited many IAS officers, IRS officers, alumni of IITs and IIMs also. So we had invited chartered accountants and company secretaries also. So recently we had seen your profile that you are working so good in the corporate world also. So some of the members and some of my viewers had asked me to invite CS Daksh Acharya ji. That was that who is the part of the Big Four also. So we had invited you after seeing your profile. Thank you. Happy to know that, sir. Yeah. And so very first we will ask you a question that from which hometown you belong to, because you are currently residing in Mumbai. So what was your background? Earlier you was born in Mumbai, or what was your background? Please explain, sir. So I am born and brought up in Mumbai itself, like from the beginning Okay. school and then college and then even the CS course and then training and job. Everything is from Mumbai and basically born and brought up in Mumbai itself from the Okay. beginning. So you had not faced any struggle like shifting from home, shifting from a town to city. Fortunately not, but even being from Mumbai, like currently where I work, Infosys, it's in Bangalore. So like I frequently need to go there for whenever there is meetings or whenever some important work is there. So even I have faced that situation. Okay, okay. So we have received so many questions. I think you had received so much common questions with respect to CS jobs and with Yeah, respect to CS articleship also. So correct. currently the ICSI module, as per the ICSI standards, I think the training structure is of 21 months. So Right. while attending the EDPs as a session, some of the students had asked me that, sir, can we continue the training in the company as well as in the PCS firm in both the organization? So is there any chances, is there any scope that a student can pursue his or her training in PCS firm as well as in the corporate? So, like my opinion is a bit different. Like I think at the beginning only it is better to identify like where your long-term interest lies. Like example, 5-10 years down the line, if you want to become a compliance officer of a listed company, then better to start right now only your training in listed company. And suppose on the other end, your long-term goal is to start your own practice, become a practicing company secretary, then better to start in a firm so that you can know, how to get clients, how to manage clients, how to make relationship with them. And on the other end, like if you want to become a company secretary and compliance officer, so if you do your training from a listed entity from beginning itself, then you will know what all compliances are there in a listed company, how to communicate with directors, how to communicate with external stakeholders, and how to manage so many people within your team. So like instead of switching the training in between of 21 months, I believe that at the beginning only the best thing would be to identify what your long term goal is, and based on that you can either join a firm and complete entire 21 months there, and or join a listed company and complete the entire tenure there instead of doing it at two different places. A good suggestion. I think students are getting confused after passing the executive. Said that we will do the hybrid training, like 10 months or 11 months in the PCS firm and remaining training in the corporate. So I think as a PCS, we need to issue the NOC to the students. Yeah, correct. And one more point is that when you complete entire 21 months in one organization, you have a better bonding with the people there, which helps you in means once your training is completed, the chances of absorption are much more. And also people know you much better. They know your ability, they know your skills. So it puts you in a like in much better position instead of switching. Perfectly right. And Daksh, I want to add one more question here. That after completion of the training, whether the company or most probably the company had hired such candidate or hire the fresh talent other than the trainees.
So it depends on the policy of the company. Like many of the listed companies, they do hire their own trainees because they have seen them for 21 months. उनको पता है कि ये कैसे काम करते हैं, इनकी एग्जैक्टली। abilities क्या है, skills क्या है. And at the same time, some companies में policy होता है कि वो freshers को नहीं लेते, experienced person को जिसको at least 2 साल 3 साल का experience है उनको लेते हैं. तो it depends. But there are lots of companies जो फ्रेशर को भी लेता है. इनफैक्ट देर आर कंपनीज जो ट्रेनीज को तो लेती है बट बाहर से भी फ्रेशर को लेते हैं. जैसे आईसीएसआई के पोर्टल पे भी काफी सारी वैकेंसीज आई है अभी अच्छे अच्छे कंपनीज की. उसमें फ्रेशर्स आर गेटिंग हायर्ड, मतलब जिनको जस्ट मेंबरशिप नंबर मिला है. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी ऑफ द कंपनी. बट या देर आर मेनी कंपनीज जो लेते हैं फ्रेशर्स को, मतलब ट्रेनीज को तो लेते ही है बट बाहर से भी फ्रेशर्स को लेता है. ओके। तो दक्ष, आपका जो मतलब ईवाई के साथ या फिर आपका पास एक्सपीरियंस था शायद एलएनटी, तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में आप बताइए कि वो उनका जो एक्सपीरियंस आपका इन्फोसिस में काउंट हुआ। यस सर, बहुत ज्यादा. क्योंकि लाइक जो एल एन टी इन्फोटेक था वो मेरा ट्रेनिंग था, जो फाउंडेशन था वो वहीं से स्टार्ट हुआ था. और कोई भी चीज होता है जैसे जो ट्री होता है उसका रूट लाइक काफी इंपॉर्टेंट होता है कि वो रूट्स कैसा है उसका. तो सिमिलरली कोई भी प्रोफेशनल है तो उसका फाउंडेशन होता है ट्रेनिंग. तो जहाँ से आप ट्रेनिंग करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वहां पे आपको सीखने मिले, वहां पे आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिले, ऐसे ट्रेनर्स मिले जो आपको सिखा रहे हैं. मतलब सिर्फ कंप्लायंस नहीं करवा रहे कि जाके ये फॉर्म भर दो, जाके ये फाइल कर दो. उसका रीजन क्या है, वो फॉर्म क्यों भरना है, उसमें क्या डिटेल्स जाएगी, लॉजिक क्या है, मतलब कहाँ पे वो डिटेल सर्कुलेट होगी, उसकी क्रिटिकलिटी क्या है. ये सारी चीज आपको वो ट्रेनर बताना चाहिए. तो जो आपका फाउंडेशन है वो ट्रेनिंग होता है. क्योंकि आप क्या पढ़ाई करके आए हो, मतलब सी ए सी ई टी देन एग्जीक्यूटिव देन प्रोफेशनल, अभी तक प्रैक्टिकली आपने कुछ किया नहीं है. बट आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या फिर फर्म में जाते हो ऑल ऑफ अ सडन, तो वो कंप्लीटली अलग होता है. तो आपका फाउंडेशन सेट होता है वहीं से कि प्रैक्टिकल लाइफ में कैसा होगा. अब तक तो आप बुकिश नॉलेज ले रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, बट अब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आए हो. तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेनिंग, जो मेरा एल एन टी इन्फोटेक में था जो काफी अच्छा था. और ज्यादा अच्छा इसलिए हो गया कि ताकि मतलब जब मेरा ट्रेनिंग चल रहा था तभी कोविड चल रहा था, तो मैं अकेला ट्रेनी था. अभी आई थिंक ओके। वो कंपनी में 3 ट्रेनीज है. बट हम्म। तभी जैसे आपको पता होगा कि हायरिंग फ्रीज लग गया था जैसे ही कोविड आया. सब कंपनी ने हायर करना स्टॉप कर दिया था ड्यू टू बजट कंस्ट्रेंट्स एंड ऑल अदर थिंग्स. तो एक एग्जैक्टली। ही ट्रेनी था मैं अकेला. तो इसके वजह से जो मेरे 5 से 6 सीनियर्स थे, सबसे मुझे काम मिलता था और काफी कुछ सीखने मिला. वर्कलोड काफी रहता था क्योंकि कोई और ट्रेनी नहीं था. एग्जैक्टली। बट अभी मुझे रियलाइज हो रहा है उसका वैल्यू. तो ये था एल एन टी इन्फोटेक का. एंड उसके बाद 2021 में मैंने ईवाई में जॉब किया था. फर्स्ट जॉब था मेरा ईवाई, वन ऑफ द बिग फोर फर्म्स में. तो वहां पे मैंने एक ब्रीफ पीरियड के लिए काम किया था इन लीगल एंड कंप्लायंस टीम. तो वो एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा था. फर्स्ट टाइम कंसल्टिंग डोमेन में मैं गया था. तो पता चला ओके। कि वहां पे काम कैसा होता है, क्लाइंट्स वहां के कौन होता है, कैसे इंटरेक्ट करना होता है क्लाइंट से, कैसे हम्म। प्रोफेशनल कनेक्शंस बनाने होते हैं. तो काफी कुछ वहां पे भी सीखने मिला. ओके। और वही जब मतलब मैं इन्फोसिस में गया तो उन्होंने भी मेरा वही देखा कि मतलब क्या क्या सीखा है मैंने, क्या क्या मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं पीछे के वर्क एक्सपीरियंस में से. एंड बेस्ड ऑन दैट दे सिलेक्टेड मोस्ट प्रोबेबली. दैट्स वेरी ग्रेट। आपकी जर्नी काफी स्ट्रगलफुल है, लेकिन जो स्टूडेंट्स है अभी करंट में जिन्होंने पास किए एग्जाम्स या फिर अभी रिसेंटली मेंबर्स बने हैं, वो कैसे बिग फोर या फिर इन्फोसिस जैसी बड़ी एमएनसी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। सो हर किसी को लगता है कि ऐसा कि मतलब जो सीएस है वो ही जा सकते हैं बिग फोर में, वहां पे ऑडिट ही होता है. बट ऐसा नहीं है. काफी सारे सीएस जाते हैं बिग फोर फर्म में. और कैसे अप्लाई करना होता है, प्रोसेस थोड़ा सा चैलेंजिंग है. क्योंकि कोई भी बड़ी चीज होगी वो आपको इजीली नहीं मिलेगी, थोड़ा उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा. तो एक उनके पोर्टल पे ही वैकेंसी पोस्ट होती है. मैंने एक एक्चुअली वीडियो भी बनाया हुआ है डेडिकेटेड, लाइक वो बड़ा वीडियो है थोड़ा 18-19 मिनट्स का, क्योंकि वो प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है. तो उसमें मैंने बताया कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है. मैं यहाँ पे भी बताऊंगा शॉर्ट में. सो बेसिकली आपको कोई भी बिग फोर फर्म है, ईवाई, केपीएमजी, डेलॉइट, उसमें उसके वेबसाइट पे करियर्स पोर्टल होता है, वहां पे आपको जाना होता है और वहां पे आपको सर्च करनी पड़ती है वैकेंसीज. और वहां पे वैकेंसी मिलना थोड़ा चैलेंजिंग होता है क्योंकि वहां पे कंपनी सेक्रेटरी वर्ड नहीं यूज होता डायरेक्टली. बिकॉज वो कंसल्टिंग फर्म है. कंपनी सेक्रेटरी होता है कंपनी में, क्योंकि वहां पे वो डेजिग्नेशन है कंपनी सेक्रेटरी. कंसल्टिंग फर्म में अलग अलग डेजिग्नेशन होता है. तो वो डेजिग्नेशन कीवर्ड आपको पता होने चाहिए. वो कीवर्ड अगर आपने डाले तो वहां पे उसकी वैकेंसीज आएगी. फिर आपको प्रोफाइल बना के अप्लाई करना पड़ता है. कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं है. हम्म। विदाउट रेफरेंस आप डायरेक्ट करियर्स पोर्टल पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो. मेरा खुद का भी वहीं से हुआ था, मैंने वहीं से अप्लाई किया था. तो थोड़ा चैलेंजिंग होता है. इंटरव्यू के लिए कॉल आने में भी हो सकता है टाइम लगता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं. और अभी बहुत सारे लोगों को ओके। वो तरीका पता चल चुका है अप्लाई करने का, तो अभी वहां पे और ट्रैफिक बढ़ गया है.
तो जैसे बता रहा था मैं कि वहां पे हो सकता है कि मतलब रिप्लाई आने में टाइम लग जाए ड्यू टू मल्टीपल एप्लीकेशंस, बट यही है सिंपल प्रोसेस। थोड़ा पेशेंस रखना होगा क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, बट यही प्रोसेस फॉलो करके कोई भी इजीली अप्लाई कर सकता है बिग फोर फर्म में विदाउट एनी रेफरेंस। ओके। तो यहाँ पे जो बिग फोर की सैलरी है या फिर जो एमएनसी कंपनीज की सैलरी है वो सिमिलर सैलरीज होती है? हाँ, मोर और लेस सेम ही होता है। बिग फोर पे आपको काफी अच्छा करता है, और एमएनसीज भी, एस यू नो, जो बिग लिस्टेड कंपनीज होती है निफ्टी 50 या निफ्टी 100, वो आपको अच्छा पे करती है क्योंकि वहां पे काम भी इतना होता है। ओके ओके। रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू किया था, उसमें एक प्रोफेशनल शायद 3 to 4 मंथ्स के बाद में उन्होंने बिग फोर से रेजिग्नेशन दे दिया। तो मैं काफी एज अ फ्रेंड उनको पूछता हूँ कि आपका रेजिग्नेशन देने का रीजन क्या होता है। मैं काफी बार ये सुनने में आता है कि उनका जो स्ट्रेस लेवल है एम्प्लॉयज का वो काफी ज्यादा होता है, तो ये सही बात है क्या? यस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल होता हम्म। है बिग फोर्स में, क्योंकि जैसे मैंने बताया वो कंसल्टिंग फर्म्स होते हैं। उनके क्लाइंट्स होते हैं फॉर्च्यून 500 कंपनीज, निफ्टी 100 कंपनीज। और कंसल्टिंग फर्म में क्या होता है कि आपको मल्टीपल लोगों से, लाइक मल्टीपल क्लाइंट्स का काम होता है। जैसे अगर आप कोई कंपनी में हो, सपोज XYZ लिमिटेड, तो आपको क्या हम्म। करना है, वही कंपनी का कंप्लायंस करना है, वो कंपनी के जितने कंप्लायंस है वही आपको करना है। बट जब आप कंसल्टिंग डोमेन में जाते हो तो ऐसा नहीं होता है कि एक ही क्लाइंट का काम आप करोगे, मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं और मल्टीपल फील्ड्स में आपको काम करना पड़ता है। तो इसकी वजह से एट टाइम्स वर्कलोड काफी ज्यादा होता है। तो वो पे भी अच्छा करते हैं, बट एट द सेम टाइम वहां पे काम भी उतना ही ज्यादा करवा लेते हैं वो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो यहाँ स्टूडेंट्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो दक्ष ने बताई कि आपको रेफरेंस के लिए कोई जरूरत नहीं है। काफी बार ये आता है कि आपको रेफरेंसेस चाहिए इन बिग फोर और फॉर एमएनसीज, तो आप डायरेक्ट उनके पोर्टल पे जाके करियर्स का जो ऑप्शन है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। और सर एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, करियर्स में आपने जो बोला टैगलाइन जो डेजिग्नेशन है वो किस तरह की होती है? लाइक सर फिक्स नहीं होता है। लाइक एग्जांपल दे सकता हूँ, गवर्नेंस प्रोफेशनल हो सकता है या फिर टीम लीडर हो सकता है। वहां पे टीम का ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टीम मतलब लाइक मैं आपको बता सकता हूँ, एक टीम होती है जिसमें सीएस को हायर करते हैं, एंटिटी कंप्लायंस एंड गवर्नेंस, या फिर रिस्क मिटिगेशन। तो ये अलग अलग टीम्स होती है। तो वो आप टीम का नाम डालोगे ना, तो उसके स्टार्टिंग में वो फिर जो एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन होगा वो खुद आ जाएगा। ओके। सो देर इज एन एंटिटी ऑल्स। कंप्लायंस एंड, सॉरी सर प्लीज। Okay. So, sir, there is an important question also. Who had failed so many times in final examination? काफी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो फाइनल में 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट या 6 अटेम्प्ट लग जाते हैं। तो वो उनके लिए भी है कि उनका कॉन्फिडेंस इतना होता ही नहीं है कि वो एमएनसी या बिग फोर में अप्लाई करे। तो मैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि अगर कोई भी पर्सन कोई भी स्टूडेंट या कैंडिडेट अगर 4 या 5 अटेम्प्ट के बाद जाता है बिग फोर में, तो वो वहां पे उसका सिलेक्शन होने का चांसेस क्या रहता 100% चांस होता है सर, क्योंकि जब मैं भी बिग फोर में था या फिर अभी जैसे मैं दूसरे कंपनीज में हूँ, तो वहां पे मैं मिलता हूँ ऐसे लोगों से जिनको 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट उससे भी ज्यादा अटेम्प्ट लगे हुए हैं। वो मेरे सीनियर है, बट आज वो इतना प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। क्योंकि पढ़ाई का जो होता है वो एक होता है। अगर आपको पढ़ाई में अटेम्प्ट लगा तो ये नहीं है कि आपका लाइफ पूरा स्पॉइल हो जाएगा, आपको जॉब नहीं देगा कोई, ऐसा नहीं है। भले आपको अटेम्प्ट लग गया, बट जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तब आपको मेक श्योर करना है कि आप अकेडमिकली इतने साउंड हो कि इंटरव्यू में आप सारे आंसर्स, मतलब जो भी सारे क्वेश्चन है उसको आंसर कर पाओ। अटेम्प्ट लग गया मतलब ये नहीं कि पर्सन को नॉलेज नहीं है, मतलब फॉर सम रीजन लग जाते हैं अटेम्प्ट लोगों को। बट अगर आप इंटरव्यू एकदम अच्छे से देते हो तो 110% आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और जब मैं खुद बिग फोर में था, तो लाइक आधा से ज्यादा जो मेरे टीम में सीएस थे उनको अटेम्प्ट लगा ही हुआ था कोई ना कोई स्टेज पे। बट वो काफी सीनियर पोजीशन पे थे, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर, उनकी सैलरी करोड़ में है, लैक्स में एकदम। तो इट डजेंट मैटर, अटेम्प्ट लॉन्ग टर्म में मैटर नहीं करता है। आपका नॉलेज, स्किल्स और एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। ऑल्दो अगर आपको अटेम्प्ट लगा है और ऊपर से आप इंटरव्यू में जा रहे हो अनप्रिपेयर्ड होके जा रहे हो, आपको आंसर नहीं पता, फिर तो डिफिकल्ट हो जाएगा कोई भी कंपनी में जाना, फिर चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, अनलिस्टेड हो, लिस्टेड हो। बट अगर आपको नॉलेज, अगर आप इंटरव्यू में सब क्वेश्चन सही आंसर कर पा रहे हो, तो उनको भी पता चलेगा कि ऑल्दो अटेम्प्ट लगा हुआ है बट ऐसा नहीं है कि नॉलेज की कमी है, नॉलेज अच्छा है। है? ओके सो लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो अटेम्प्ट नहीं मैटर करता है। ओके। तो यहाँ पे एक चीज आप जो यंग मेंबर्स या स्टूडेंट्स हैं उनको ये भी बताओ कि आप जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी जो है वो कैसे हम नेगोशिएट करके हमारी सैलरी को हाई करवा सकते हैं इंटरव्यू में?
हाँ, ये तो काफी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो ट्रेनिंग के लिए जाए या जॉब के लिए जाए। एग्जैक्ट। तो सैलरी नेगोशिएशन के लिए मतलब दो तीन पॉइंट जो मैं खुद फॉलो करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहले तो अगर आप कहीं पे भी अप्लाई करो तो आपको पता होना चाहिए कि उनका बजट क्या है। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, कोई भी वैकेंसी की पोस्ट आती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो पोस्ट में ही लिखा लिखा होता है कि सीटीसी एग्जाम्पल 10 लाख to 12 लाख। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि विदाउट प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही चले जाते हैं इंटरव्यू के लिए और हवा में फिर नेगोशिएट करेंगे कि 15 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए। ऐसे नहीं होता, प्रॉपरली आपको करना पड़ता है नेगोशिएट, वरना फिर वो आपको कंसिडर भी नहीं करेंगे। तो कोई ओके। भी वैकेंसी होती है अच्छे कंपनी की या बिग फोर फर्म की, उसमें लिखा होता है सीटीसी की 10 to 12 लाख उनका बजट है। तो आपको एक बार फर्स्ट पॉइंट है कि आपको पता होना चाहिए कि वो रेंज क्या है, ताकि आपको पता चल पाएगा कि आप कितने फिगर्स में नेगोशिएट कर नेगोशिएट कर। पाओगे। राइट। सेकंड आपका सेकंड एक बार आपका इंटरव्यू हो जाता है, फिर आपको आपके इंटरव्यू को खुद को रेट करना चाहिए। मैं ये करता हूँ, मतलब मेरा कोई भी इंटरव्यू हो गया तो कैसा गया था, वो अच्छा गया था, एवरेज गया था, या काफी अच्छा गया था, या फिर काफी बुरा गया था। तो जितना आपको 10 में से खुद के इंटरव्यू को रेट करना है कि 10 में से 8 था या फिर 10 में से 10 था, बहुत अच्छा गया हो तो जितना अच्छा। और वो आपको मतलब बायस्ड होके नहीं करना है कि मतलब खुद का इंटरव्यू था तो खुद को ही रेटिंग दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है। तो अगर काफी जितना इंटरव्यू आपका अच्छा जाएगा उतना आपके पास लेवरेज होगा कि आप नेगोशिएट कर पाओगे। एक बार ये आपको पता चल गया कि चलो 10 to 12 इसकी रेंज है, मेरा इंटरव्यू भी अच्छा गया है, तो जो एचआर है वो आके आपको 10 ही देगा। क्योंकि एचआर का काम है, देखिए दो लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। एचआर का काम है कि जितने कम में हम उसको लेके आ पाए वो हमारे लिए बेटर होगा, और आपका है कि बेस्ट। जितना ज्यादा मैं नेगोशिएट कर पाऊँ वो मेरे लिए बेटर होगा। तो वो एचआर अपना ट्राई करेगा कि मैं इसको 10 में लाऊं, आपको ट्राई करना है कि मैं इसको 12 में ले, मतलब मैं 12 में ये ऑर्गेनाइजेशन में जाऊं। तो जैसे आपको पता चल गया कि मेरा इंटरव्यू भी अच्छा गया है, तो आपको पेशेंस रखना है। मतलब आपको उनको बताना नहीं है कि आप एकदम डेस्परेट हो ये अपॉर्चुनिटी के लिए, इधर आपको नहीं मिलेगा तो आपका करियर खत्म हो जाएगा, ये सब आपको बताना नहीं है। आपको एकदम काम रहना है, आपको पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं है कि हर दिन आप फॉलो अप कर रहे हो कि व्हाट इज द स्टेटस मेरे सीवी का, एप्लीकेशन का। उससे उनको पता चल जाएगा कि आपको ज्यादा नीड है एग्जैक्टली। ये अपॉर्चुनिटी की। तो आप एग्जैक्टली। शांत रहो। मतलब जैसा आपका इंटरव्यू होता है 2 3 दिन 3 4 दिन तक आप खुद से कॉल मत करो। आपका इंटरव्यू अच्छा गया तो 100% आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उनका ही मेरे पास कॉल आएगा। जब वो कॉल करे तब आपको, और अभी इसमें और एक पॉइंट है कि आप ऐसे ही नहीं बोल सकते कि मुझे 12 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए। आप रीजन बताओ कि क्यों चाहिए। कि अभी जैसे उनका बजट था, मैंने ये एग्जांपल में बोला 10 to 12, आपकी एक्सपेक्टेशन है 14 लाख, तो आपको बताना पड़ेगा कि क्यों 14 चाहिए। जैसे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। एक रीजन होता है एग्जांपल मोस्ट कॉमन की जो रोल है, मतलब जो उनको एक्सपेक्टेशन है कि ये वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो एग्जैक्ट वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है। जैसे लिस्टेड कंपनी है तो आपके पास एक्सपीरियंस है लिस्टिंग कंप्लायंसेस का। तो ये एक रीजन हो सकता है। सेकंड, आप उनको ये भी बोल सकते हो कि आपको ऑल इंडिया रैंक आया है तो आप थोड़ा तो ज्यादा डिजर्व करते हो। थर्ड, आप उनको ये भी बोल सकते हो कि जो हिसाब से इंटरव्यू गया था और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है न्यू रोल में, ये सब कंसिडर करके आप ज्यादा सैलरी डिजर्व करते हो। तो इस तरीके से ओके। ये दो तीन चीज आपको ध्यान में रखना है। पहले तो आपको वो बैंड पता होना चाहिए कि 10 लाख to 12 लाख एग्जाम्पल। सेकंड, आपको खुद के इंटरव्यू को रेट करना है। अगर आपका इंटरव्यू ही एवरेज गया होगा, ओके गया होगा, तो आपके पास ज्यादा चांस नहीं है नेगोशिएट करने का। क्योंकि फिर वो बोल देंगे ठीक है हम दूसरा कैंडिडेट को देख लेंगे, क्योंकि इंटरव्यू भी ओके गया था। और तीसरा, आपको एकदम उनको बताना नहीं है कि आप ये अपॉर्चुनिटी के लिए एकदम ईगर हो, यही अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। नेगोशिएशन का प्रोसेस जो होता है वो लंबा होता है। लोगों को लगता है कि 2 दिन में मेरे को मिल जाएगा एकदम बड़ा सीटीसी, ऐसा नहीं होता है। 15 से 20 दिन लग जाते हैं नेगोशिएट करने में। पहले एचआर करेगा, फिर हेड एचआर करेगा, फिर सीएस टीम वाले करेंगे। वो बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। तो इतना आप में पेशेंस होना चाहिए कि आप इतने सारे मल्टीपल लोग से नेगोशिएट कर पाओ। और फोर्थ, आपको ऐसा आप अमाउंट नहीं बोल सकते रैंडमली कि 15 लाख 20 लाख। आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों आपको उतना अमाउंट चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो कोई भी ध्यान रख सकता है नेगोशिएट करने के टाइम। और मैं कहूंगा कि ये नेगोशिएशन का जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा प्रोफेशनल हम नेगोशिएट ही नहीं करते और फिर हम बोलते हैं कि सैलरी जितनी मिलनी चाहिए थी उतनी मिली नहीं। क्योंकि हम मतलब कहीं ना कहीं राइट। डरते हैं ये पॉइंट। जब मैं भी फ्रेशर था तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं नेगोशिएट करूंगा तो उनको ऐसा लगेगा कि ये तो पैसे के ऊपर ही देख रहा है, या फिर ये क्या सब्जी मंडी थोड़ी ना है कि नेगोशिएट कर रहे हो। बट ऐसा राइट। कुछ नहीं है, हर कोई अपना काम कर रहा है। अगर आपको लगता है कि आपका सैलरी 10 लाख होना चाहिए तो यू शुड स्टैंड फॉर इट। आपको ही खुद के लिए मतलब स्टैंड होना पड़ेगा, कोई और आके बोलेगा नहीं आपके लिए। तो पहली बात तो आपको नेगोशिएट करना चाहिए, हर एक अपॉर्चुनिटी में करना चाहिए, जो प्रोफेशनल करते ही नहीं है। क्योंकि और आधे से ज्यादा प्रोफेशनल को तो लगता है कि नेगोशिएशन होता ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है एचआर ने बोला 7 लाख तो 7 लाख खत्म। तो ऐसा नहीं 7 होता है। लाख राइट। नेगो नेगोशिएशन आपको करना ही चाहिए। और एट टाइम्स मैं आप मतलब मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि नेगोशिएट करके आप
40 to 50% हायर सैलरी तक जा सकते हो। मतलब एक एट वाह। टाइम्स एचआर आपको बोलेगा कि 7 लाख आपकी सैलरी हम ऑफर कर रहे हैं, बट वो 7 को आप 11.5 तक भी खींच सकते हो, अगर आपको सही तरीका पता है कि कैसे आपको नेगोशिएट करना है, कौन से पॉइंट्स आपको रखना है नेगोशिएशन के टाइम। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो हर प्रोफेशनल को पता होना चाहिए, बट आई थिंक अनफॉर्चुनेटली ये हमको पढ़ाई में तो होता ही नहीं है, और कोई बताता भी नहीं है कि कैसे करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जिससे हम हमारा जो पे है वो बढ़ा सकते हैं। Exactly, sir. I think after this talk show, and everyone would ask me your number or email ID that we need number of Daksh after the interview. कि हमें हम यहाँ या मोर देन नेगोशिएशन हैप्पी टू स्किल्स, हेल्प एनीवन सर। एग्जैक्टली यहाँ नेगोशिएशन स्किल्स आपसे कैसे सीख सकते हैं, या फिर ऐसे प्रोफेशनल जो ऑलरेडी इस चीज को या इस मैटर को डील कर चुके हैं। ठीक है, तो करेक्ट। यहाँ पे एज ए कंपनी सेक्रेटरी या फिर एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको नेगोशिएशन स्किल्स आनी चाहिए। वहां आप ये बता सकते हो अगर कुछ भी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स आप में हैं, आपका सीवी अगर करेक्ट। स्ट्रांग है, तो हर स्टूडेंट्स को और मेंबर्स को वो शोकेस करना चाहिए, अकॉर्डिंगली नेगोशिएट करके अपने सैलरी हाई से हाई करनी चाहिए। राइट। करना ही चाहिए, आई थिंक ये पॉइंट मस्ट है। मतलब आज तक मैंने ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं दिया, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जहाँ पे मैंने नेगोशिएट ना किया हो। अगर कोई एक्स अमाउंट बोल रहा है तो आपको X+20 आपका एटलीस्ट टारगेट होना चाहिए कि उतने तक मैं इसको लेके जाऊँ, क्योंकि यू नो कि आपने कितनी मेहनत की है ये स्टेज पे आने के लिए। जो एचआर है उसको नहीं पता कि आपने 3 4 5 साल इतने सेक्रीफाइसेस किए हैं, डे नाइट एक करके आपने सीएस एग्जाम क्लियर किया है, ट्रेनिंग में आपने इतना मतलब काम किया है, आपका मतलब घर वर का बैलेंस मेंटेन करके इतना ज्यादा काम एग्जैक्टली। आपने किया है। तो वो आपको पता है, तो आपको खुद के लिए स्टैंड होना पड़ेगा, मतलब आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा और आपको करना ही चाहिए नेगोशिएट। Exactly. Like Daksh, you were born and brought up in Mumbai, but some of the यस। candidates are from the rural background or from the town or village background. Like you had all the experience of in city boy, and there are so many students and the young members who came from the small village in the Mumbai or in the Bangalore in big cities. So what skills does they require? Like you had all these skills like how to face an interview, does English language is important, so how, which skills, what skills then an student or member is required to fight an interview in the Big Four or the MNCs? तो इसमें एक पॉइंट है कि सर अगर कोई मुंबई से है या बैंगलोर से है तो उनको भी वो स्किल सीखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि अभी जैसे मैं बैंगलोर से हूँ तो सॉरी जैसे मैं मुंबई से हूँ तो मुझे पहले से वो स्किल पता है, ऐसा नहीं होता। वो स्किल मैंने भी कहीं ना कहीं सीखी है, और हर किसी को सीखना ही पड़ता है। तो ऐसे कुछ स्किल्स जो मैं बता सकता हूँ वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसे अभी हम सिंपल एग्जांपल जैसे नेगोशिएशन का ले लेते हैं, ठीक है, तो वो नेगोशिएशन आप कर ही नहीं पाओगे जब तक आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। नेगोशिएशन को आप साइड में रखते हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऐसे कंपनी सेक्रेटरी आपका रोल ही ऐसा है कि आपको बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ता है। जैसे इंटरनली आपको डायरेक्टर से, सीनियर मैनेजमेंट से, विद इन टीम मेंबर से कम्युनिकेट करना पड़ता है। फिर आप रेगुलेटरी साइड जाओगे तो आपको सेबी से कम्युनिकेट करना है, जो वेरियस रिप्रेजेंटेशन है, कंसल्टेशन पेपर आते हैं उसका रिस्पॉन्स आपको देना है। फिर एमसीए के साथ कम्युनिकेशन करना है। फिर अगर आप दूसरे साइड जाओगे तो आपको आरटीए के साथ कम्युनिकेट करना है, शेयर होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करना है, स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ कम्युनिकेट करना है। तो सीएस का रोल ही ऐसा है जिसमें आपका पूरा दिन कम्युनिकेशन में ही जाता है अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, लाइक बेसिक आईटी स्किल्स जो आपके हो जाते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, क्योंकि आज के टाइम पे अभी कोई काम पेपर पे नहीं होता। पहले सब कुछ पेपर पे होता था, कोई फॉर्म भरना है तो आपने लिख के उसके ऊपर आपने फॉर्म भर दिया। अभी सब कुछ स्टार्ट से ही कंप्यूटर पे होता है। तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है वो आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए। एंड थर्ड इज कि आपका जो नॉलेज है वो अपडेटेड होना चाहिए। मतलब मैं लाइक काफी सारे प्रोफेशनल्स से मिलता हूँ, मतलब काफी स्मार्ट होते हैं बट वो एट टाइम्स खुद को अपडेटेड नहीं रखते। मतलब हम क्या कैसा होता है, लोगों को लगता है कि ठीक है अब हमने 3 साल पढ़ाई कर ली, अब खत्म, अब मेरे को कभी बुक नहीं देखनी है, मुझे अभी कभी एमसीए की वेबसाइट पे नहीं जाना है, मुझे अभी कभी हम्म। सेबी के सर्कुलर नहीं देखना है। ऐसा नहीं है, उल्टा जर्नी यहाँ से ही चालू होती है। एक बार आप क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपको ज्यादा जरूरत पड़ती है अपडेटेड रखने की। ऐसे स्टूडेंट क्या होता है, कुछ अमेंडमेंट आएगा तो सब प्रोफेसर वीडियो डाल देंगे, और आपको भी एग्जाम लिखनी है तो आप पढ़ लोगे, वरना फिर आपको पता राइट। चल जाएगा कि मार्क्स कट जाएंगे मेरे। बट ऐसा हम्म। प्रोफेशनल आपको कोई बताएगा ही नहीं। अगर कुछ अमेंडमेंट आएगा तो आपको खुद से जाके वो रीड करना पड़ेगा कि क्या अमेंडमेंट आया है, खुद को अपडेटेड रखना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशनल होते हैं उनको ऐसा लगता है, स्पेशली जो यंग स्टूडेंट्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि अभी मेरी एग्जाम खत्म हो गई तो अभी मुझे पढ़ाई करने की क्या जरूरत है। तो आपको पढ़ाई नहीं करनी, मतलब टिपिकल बुक लेके नहीं बैठना है, बट आपको जो हर हफ्ते हर दिन कुछ कुछ ना कुछ नया आता रहता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या आया हुआ है। तो ये कुछ स्किल्स है। So Mr. Daksh, there is a conclusive question in which the question seems funny. I think
You was the part of LTI Infotech, and currently the MCA version 3 is handling by the LTI. So does CS or CS members calling you with respect to the technical glitches of the MCA portal right now? यस यस सर, कॉल्स आते हैं, वो बोलते हैं कि आपका कोई कनेक्शन है कि नहीं एल एन टी इंफोटेक के आईटी टीम से जो ये हैंडल कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली या फिर फॉर्चुनेटली मेरा कनेक्शन उनके साथ नहीं है, वरना फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो हमें भी हर किसी की तरह वो चैलेंजेस आ रहे हैं V3 पोर्टल में, एंड आई थिंक होपफुली वो जल्दी सॉल्व होने चाहिए, बट एज ऑफ नाउ तो काफी चैलेंजेस है जैसा आपने बताया। There are so many technical glitches, and the members, in fact, young members who are doing practice also, they are facing so much technical glitches due to which the client's work is hampered, sir, very much. यस। So, sir, can we ask as a part of conclusive question the salary of CS team in the secretarial team of the Infosys? Indirectly, your लाइक salary. ओके या सो फाइन फाइन सो लाइक मैं एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बता सकता, बट जैसे मैं आपको एक रेंज बता सकता हूँ कि कोई भी लिस्टेड कंपनी में, जैसे इन्फोसिस हो गया या फिर कोई भी बड़ा जैसे एल एन टी इन्फोटेक हो गया, रिलायंस हो गया, टीसीएस, ऐसे कंपनीज में आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, और मेरा सैलरी भी इसी रेंज में आ जाएगा। तो अगर आप ऐसा फ्रेशर जाते हो तो यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग बिटवीन 7 to 11, बट आपको जैसे थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, जैसे मेरे पास अब एक्सपीरियंस है ईवाई का, और इन्फोसिस में भी मैंने मोर देन अ ईयर अब कंप्लीट कर लिया है, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ सैलरी बिटवीन 8 लाख to 13 लाख, एनीथिंग बिटवीन दिस रेंज, डिपेंडिंग आपका नॉलेज कितना है, Okay. आपका स्किल्स कितना है, आपका एक्सपीरियंस कितना है। और हर किसी को ऐसा एक अमाउंट चाहिए होता है, वो अमाउंट बताना काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो अमाउंट सभी के लिए फिक्स नहीं होता। मतलब अगर आपको सैलरी मिल रहा है 12 लाख रुपीज, तो जरूरी नहीं है कि दूसरा आएगा उसको भी 12 मिलेगा, हो सकता है उसको 14 मिल जाए, वो बेटर हो सकता है आपसे, या फिर हो सकता है Okay. उसको 10 मिले क्योंकि उसका इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं गया, या फॉर सम रीजन एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है। तो सैलरी ऐसा स्टैंडर्ड नहीं होता, बट मोर और लेस जो रेंज मैंने आपको बताया 8 to 13 लाख के बीच में ही होता है यंग कंपनी सेक्रेटरीज का इन बिग लिस्टेड कंपनी, और मेरा भी इसी रेंज में आ जाता है। ओके, तो सर आफ्टर वर्किंग एज एन एफसीएस, मतलब 5 साल एक्सपीरियंस होने के बाद में आई थिंक सैलरी 15 to 20 के स्लैब में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। या वेरी वेरी मच इजीली, क्योंकि मतलब जैसे 1-2 साल के एक्सपीरियंस वालों का ही अगर 8 to 13 के रेंज में है, तो एनुअली भी अगर आपका मिनिमम पकड़ के चले 10 से 15% का इंक्रीमेंट होगा, और 2 साल के बाद तो प्रमोशन हो ही जाता है मोस्ट प्रोबेबली, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो मोर देन दैट, इनफैक्ट मच मोर। ये मिनिमम रेंज आपने जैसे बताया 15 to 20 तो इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं विथ नॉट इवन एफसीएस, 3-4 साल का आपको एक्सपीरियंस हो जाए तो आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो लिस्टेड ओके। कंपनीज में, बिग ओके, फर्म्स में। तो यहाँ स्टूडेंट्स काफी, ये जो क्वेश्चन है सैलरी का जो क्वेश्चन है, एज ए यंग कंपनी सेक्रेटरी या फिर एज ए स्टूडेंट जो फाइनल में रहते हैं, उनके काफी इश्यूज रहते हैं। और जब में ईडीपी सेशंस या ओडीओपी सेशंस होते हैं अपने आईसीएसआई के, तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन सबका रहता है कि सर सैलरी का स्टैंडर्ड मार्केट में क्या स्टैंडर्ड है, कितनी सैलरीज है, और हमने ये भी सुना है कि सैलरी काफी कम है। तो यहाँ मैं इनको यही एक्सप्लेन करता हूँ कि सैलरी इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द स्किल्स, और स्किल सेट क्या है, किस तरह से आपका इंटरव्यू होता है, किस तरह से आप नेगोशिएट करते हो, किस तरह की आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, एंड द सैलरी इज डिपेंडेंट ऑन सच एट्रीब्यूट्स। करेक्ट, एग्जैक्टली। और मैं भी हमेशा यही बोलता हूँ, और ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल की सैलरी कितना है, हर किसी को जानना होता है। जब मैं भी स्टूडेंट था सबसे मेरा फेवरेट क्वेश्चन यही होता था, किसी का भी मैं इंटरव्यू वगैरह देखता था तो कि सैलरी कितनी मिलती है, क्योंकि इतनी पढ़ाई कर रहे हैं दिन रात एक करके, तो कितना मिलने वाला है, हर किसी को, हर कोई डिजर्व करता है जानना। एंड राइट। सेकेंड थिंग, जो आपने कम पे का बोला, तो मैं मतलब हमेशा बोलता हूँ कि जैसे हर क्रिकेटर विराट कोहली नहीं होता, राइट सर, तो हर हर कोई विराट कोहली सचिन तेंदुलकर नहीं होता, तो वैसे ही हम्म। सिमिलरली हर किसी की सैलरी भी सेम नहीं होगी, वो आप कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस कितना है, हम्म। कितने अच्छे से आप आपका काम कर पा रहे हो, कितना अच्छा आपका नॉलेज है, ये फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और जनरली मैंने देखा है जो लिंक्डइन वगैरह पे भी जो एकदम कम सैलरी वाली अपॉर्चुनिटीज होती है, वो जनरली टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। इसमें एक रीजन है कि लाइक सी आपको जॉब कहाँ पे होगी, जहाँ पे इंडस्ट्रीज है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज कंपनीज है, होगी एंड तो कंपनीज होगी, राइट। कंपनीज, हाँ, तो वो है मुंबई में, फिर पुणे में है, फिर बेंगलोर में है, दिल्ली, गुड़गांव में है, और अभी कुछ कुछ हैदराबाद में भी है। तो ये सिटीज में
कॉर्पोरेट्स है मोस्ट प्रोबेबली, लाइक मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स मुंबई में है, देन बैंगलोर पुणे ये सारे सिटीज में है। तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली कंपनीज ज्यादा है तो आपकी डिमांड ज्यादा होगी। जैसे कोई भी चीज का प्राइस, मतलब बेसिक इकोनॉमिक्स आप ले लो, कोई भी चीज हो सकती है, एक बिस्किट का पैकेट है, उसका प्राइस डिपेंड करता है कि उसकी डिमांड कितनी है, डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है उसकी प्राइस। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा क्योंकि लेने वाले लोग ज्यादा है। सिमिलरली जब आप मुंबई वगैरह जैसे सिटीज में आते हो तो यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरीज की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि कंपनीज ज्यादा है, कंपनीज ज्यादा है तो सीएस की जरूरत ज्यादा है, इसीलिए आपको सैलरी यहाँ पे ज्यादा मिलता है। और टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में थोड़ी कंपनीज इंडस्ट्रीज कम हो जाती है, इसके वजह से वहां पे आपको सैलरी थोड़ा कम मिलता है। अगर आप सही जगह पे आके मतलब करोगे आपका जॉब तो आपको भी अच्छा पे मिलेगा। तो ये जो मैंने देखा है कि 20,000 25,000 वाली सैलरीज होती है वो मोस्टली लाइक ऐसे जगह पे होती है जहाँ पे इंडस्ट्रीज थोड़ी कम है, नहीं और कुछ कुछ लोगों को मजबूरी में शायद वहां पे काम करना पड़ सके करना कि वो दूर नहीं जा सकते फैमिली से, तो ये सारे इश्यूज हो सकते हैं। बट अगर आप ऐसे सिटी में मूव आउट करते हो तो आपकी सैलरी अच्छी होगी। जैसे आपको आपको सही टाइम पे सही जगह पे रहना है। जैसे आप अगर मेडिकल शॉप, एक मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अगर मेडिकल शॉप है उसको आप अगर हॉस्पिटल के नीचे ओपन करोगे तो आपका धंधा काफी अच्छा चलेगा, राइट। और वही मेडिकल शॉप आप समझ लो कोई कमर्शियल बिल्डिंग है या फिर कोई क्रिकेट स्टेडियम है, उसमें आप मेडिकल शॉप ओपन करोगे तो वहां पे भी आपका धंधा होगा, बट इतना नहीं होगा जितना हॉस्पिटल के नहीं नीचे होगा। तो सही जगह एग्जैक्टली पे आपको पता होना चाहिए कि आपकी जरूरत कहाँ पे है, जहाँ पे डिमांड है आपको वहां पे होना चाहिए, तो आपको ऑब्वियसली अच्छा पे मिलेगा। right. So Daksh, you had given so much insights about the CS curriculum, CS course, and about the scope of the CS in Big Four and MNCs also. So this interview and this talk show is really meaningful for me and as well as for the students and the young company secretaries. So thank you so much for giving your time for this talk show. थैंक यू सो मच सर। आई होप जो भी व्यूअर्स है उनको कुछ वैल्यू एडिशन हो ये टॉक शो से, एंड इट वाज रियली ग्रेट स्पीकिंग विथ यू। And sir, if some students or some girls or male candidates had asked your number, so can we give your number on the comments? या श्योर यू कैन। और आप इंस्टा या लिंक्डइन हैंडल दे सकते हो, वो ज्यादा बेटर रहेगा ताकि मैं वहां पे ज्यादा मतलब लोगों को मैनेज कर पाऊँ। तो इंस्टा या लिंक्डइन हैंडल आप श्योरली दे सकते हो। आई एम वेरी Yeah. मच एक्टिव ऑन यूट्यूब ऑल्सो, तो आप यूट्यूब चैनल का लिंक या फिर इंस्टा हैंडल या फिर लिंक्डइन हैंडल उनको दे सकते हो। Yeah, especially for the negotiation skills. Okay. या श्योर, वो हर Yeah, किसी okay. को सबसे ज्यादा जरूरत है। Yes, sir. Thank you so much, Daksh, for giving your time. थैंक यू वेरी मच सर।